السلام علیکم. گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب. السلام علیکم سر. السلام علیکم عائشہ, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ خاص طور پہ جو یہاں پہ 7th ایونیو والی روڈ ہے, چاند تارا والی روڈ, وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا, گھنٹہ لگ گیا یہاں. لوگوں نے از خود جو ہے لاک ڈاؤن اب وائلیٹ کرنا شروع کیا. کیا کریں لوگ یار, ایک ہفتہ ہو گیا. بالکل. اور مطلب ظلم تو ان دکانداروں پہ بیچاروں کو جنہوں نے روز کمانا ہوتا ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی حکومت کی پالیسی. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جب ہو جائے, آنے کی تاریخ طے ہو جائے, اس سے 24 گھنٹے پہلے بند کر دیں. پیٹرول پمپس پر پیٹرول ختم ہو رہا ہے. اب آپ اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرکوں میں سبزیاں ختم ہو رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں. اب وہ صورتحال ایسا ہی ہے کہ ٹرکس جو ہے نا اس طرف سے روات پہ اور ادھر سے ترنول پہ ان لوڈ ہو رہے ہیں. اچھا. تو وہاں سے اب سوزوکی جو ہے ایک سوزوکی والا 8-8 ہزار مانگ رہا ہے شہر میں آنے کے. اب ایک ٹرک میں اندازہ لگائیں کتنی سوزوکیاں بنیں گی اور کیا کاسٹ جائے گی پروڈکٹ کی. بے شمار مسائل ہیں, اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. غور کرنا ہے. سر صرف ہم اس کا نہیں, کوئی حل نکالنا چاہیے. ہم نہیں بلکہ ٹیلی ویژن پہ بھی عوام بھی اور ہر کوئی اب حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ جو انہوں نے لاک ڈاؤن والی سچویشن اور کرفیو والی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے, اس کو تھوڑا سا نرم کر دیں, راستے کھول دیں. اور جن لوگوں کے کاروبار ہیں ریڈ زون میں, وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. ریڈ زون نہیں, 6 روڈ سے پیچھے پورا پنڈی بند کیا ہوا ہے. مری روڈ, راجہ بازار, صدر. آپ دیکھیں تہران کھلا ہے, واشنگٹن تو کھلا ہے, لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی کو بند کر دیا ہے. یہ تو زیادتی ہے. اب حکومت کو سیریسلی اس پہ غور کرنا چاہیے. اور حکومت جبکہ عوام تعاون کرنے کے لیے مکمل تیار ہے, جب ایک اشارہ کریں گے وہ بند کر دیں گے. ایسے ہی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا حکومت جو ہے وہ عوام کا بھی خیال رکھے. بلکہ میں نے تو آج ایک پوسٹ کی تھی, میں ذکر کرنا چاہوں گی. تو میں نے لوگوں کی عوامی رائے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر حکومت راستے کھول دے تو کیا تاثر دیں گے نا. تو ایک کمنٹ آیا تھا, اس کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دوں. اس شخص نے کہا ہوا تھا کہ حکومت نے ہمیں پیسے تو نہیں دینے بجلی کے لیے, گیس کے لیے, اور ہمارے اخراجات تو یوں ہی ہیں. ہم لوگ تو حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے حکومت کوئی تعاون نہیں کری. تو اب مہربانی ہے کہ حکومت راستے کھول دیں اور ہمیں کاروبار کرنے دیں, تاکہ ہم حکومت کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے کچھ کما سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ خیر اس نے تھوڑا سا طنز کیا, لیکن حکومت کو پیش کریں نہ کریں, ان کے اپنے بچے اب فاقوں کی طرف آنا شروع ہو گئے. وہ بجلی گیس کے بل اتنے آ جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہیں, سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مینیج کر لیں. گھر کا کچن ہم بعد میں مینیج کر لیں گے. اچھا سر, ہم آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہم لوگ بات کریں امریکہ اور ایران جنگ کی. اب وہاں پہ کیا تاثر پایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے آج ہم یہی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ امریکی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ایرانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے, اور اس سے جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ایرانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کچھ تھوڑا سا سرچ کیا, اس میں ڈیوائڈ ہے ایرانی میڈیا میں. گورنمنٹ کا جو میڈیا جیسے ہمارا پی ٹی وی ہے, اس طرح جو ایران ٹی وی ہے, جی وہ تو بجائے اس کے کہ عوام کو ٹھنڈا کرے, وہ جنگی جنون پروموٹ کر رہا ہے. اگریسو بیہیویئر ہے, جنگی جنون پروموٹ کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ اس میزائل کو بار بار دکھا رہا ہے جو ان کے ایک اسکوائر پہ لگا ہوا ہے, جس کی بہت بڑی کیپیسٹی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تیار ہے, اگر ایران امریکہ لڑنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بدترین شکست سے دوچار کریں گے. اس قسم کے وہ بیانات چلا رہا ہے اور پروگرامز چلا رہا ہے. جبکہ جو ایران کا دوسرا میڈیا ہے, پرائیویٹ میڈیا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو صلح کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں صرف تباہی ہونی ہے. لیکن ایران کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے تیار ہے. اور ایک اطلاع کے مطابق ایران نے جو آبنائے ہرمز پہ جو دشمن کے جہاز ہیں ان پہ فائرنگ بھی کی ہے, اور 2 جہاز بھی قبضے میں لیے, شپس. تو لیکن امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹائم دے رہا ہے. اور لیکن ایک رائے ہے, جو امریکہ جو ٹائم دے رہا ہے وہ بڑی زبردست گیم کر رہا ہے. گیم وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں سب ایران کے ساتھ تھے. بالکل. اور جب ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ امریکہ نہیں مان رہا, ہم تو تیار ہونے والے تھے, تو اور زیادہ ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہو گئی تھی. ایسے ہی ہے, وکٹم کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں جاتی ہیں. اب جب امریکہ نے دوسری دور میں یہ کیا کہ خود تیار ہو گیا, ہمارے آ جاؤ,
ईरान ने बाइकआउट कर दी, उससे ईरान का इंप्रेशन खराब हुआ। अब अमेरिका दुनिया को बता रहा है देखो हम तो जंग बंदी के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, ईरान एग्रेसिव है। लेकिन सर अमेरिका की आपको चाल नहीं समझ आई कि उसने कैसे अब नए हुर्मुज़ ईरान के लिए बंद कर दिया है, तो अगर वो ये इकदाम ना करता लेकिन तो मुज़ाकरात के टेबल पे तो दोनों बैठे होते। बंद कर दिया ठीक है, गलत है, सब सारी दुनिया कह रही है गलत है, लेकिन कभी भी बाइकआउट से मसला हल नहीं होता, बात करने से हल होता है। ईरान पहले की तरह आ जाता और टेबल पे बैठता, फिर कहता है अब नया हरमस खोलो, तब जंग बंद होगी। और अगर ईरान कहता है कि आप यूरेनियम हमारे वाले करो, तो वो कहता है कि तो नया पॉइंट है, ये तो पहले था ही नहीं, हम नहीं करते मुज़ाकरा। फिर वो जो है ना अमेरिका के खिलाफ जाती सारी। सर जो मुश्तक मालूमात हैं उसके मुताबिक पासदारान इनकलाब वाले जो हैं वो प्रेशर दे रहे हैं गवर्नमेंट पे, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, डिवीजन है एस्टेब्लिशमेंट में भी और गवर्नमेंट में भी। तो ये तो अमेरिका भी कह रहा है, ट्रम्प भी ये बात कर रहा है कि वहाँ पे उनकी जो क़यादत है उनमें डिवीजन है, इस वजह से वो फैसले नहीं कर पा रहे कि हमने मुज़ाकरात में शामिल होना है या नहीं। तो सर मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है, वो हम अपने नाज़रीन के सामने पेश करते हैं। अगर हम बात करते हैं अमरीकी मीडिया की, तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अमरीकी शराइत पर लचक ना दिखाई तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहीरे अरब और खलीज फारिश में अमरीकी बेड़े की नकलो हरकत में इजाफा हो सकता है। सफारती कामयाबी का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम मीडिया को ये तासुर दे रहे हैं कि इनकी सख्त पॉलिसी काम कर रही है और ईरान समझौते के लिए तैयार हो रहा है। मुख्तसर ये है कि अमरीका इस वक्त बातचीत का दरवाज़ा खुला रखकर हाथ में डंडा पकड़ने की पॉलिसी पर पैरामल है और ईरान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करके एक ऐसी डील पर मजबूर करना चाहता है जो मुकम्मल तौर पर अमरीका के मफाद में हो। अमरीकी मीडिया इस वक्त मुहतात, उम्मीद और शदीद फौजी तनाव दोनों को बैक वक्त रिपोर्ट कर रहा है। जैसे आपने कहा ना कि अमेरिका की जो हिकमत अमली है डंडा हाथ में रखकर, उसने वो डंडा हाथ में नहीं रखा, उसने अब चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया, अपना तमाम शिप्स पहुंचा दी हैं, असला पहुंचा दी है। और अब जो ईरान को भी जो कहा जा रहा है ना दो टोक अल्फाज में, क्योंकि इतनी तवील अरसे तक साल तक तो अनसर्टेनिटी बरकरार नहीं रखी जा सकती, सारी दुनिया की मैशत तबाह हो रही है। उसे कहा जा रहा है कि भाई आप फैसला करो, मुज़ाकरात की तरफ आना है या लड़ना है। और अब अगर ईरान ने लड़ने का फैसला किया ना, तो ऐसा मैं बता रहा हूँ कि सारा खिता मिलकर फिर उसको अमेरिका के साथ मिलकर मारेगा। बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक होगा। और अच्छा सर, जैसे बहुत खतरनाक होगा, खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन। आपने भी बात की ईरानी मीडिया दो पॉइंट पर बिखरा हुआ है, जो उनकी स्टेट मीडिया है वो कुछ और कह रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर है, लेकिन जो उनका निजी मीडिया है वो कुछ और कह रहा है। उसके मुताबिक भी थोड़ी सी रिसर्च की है, अगर आप कहते हैं तो मैं पेश करती हूँ। तो ईरानी मीडिया इन मुज़ाकरात को अक्सर एक मीडिया गेम करार देता है जिसका मकसद ईरान को कसूरवार ठहराना और ब्लेम गेमिंग है। मतलब उनका ये कहना है कि ये जो सारे मुज़ाकरात है ये गेम है। अच्छा, ईरान का ये कहना है। यस, ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अपना एक 10 निकाती मंसूबा पेश किया है। एक सेकंड लूंगा आपका जी। ये जो कह रहे हैं ना कि जो मुज़ाकरात है ये गेम है, ये बात उसको ईरान को टेबल पे आके कहनी चाहिए। हाँ। फिर दुनिया जो है उसकी फेवर में जाएगी, वरना नहीं। सर, इनके जो सुप्रीम लीडर जो शहीद कर दिए गए थे, वो लोगों का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन भी थे और वो बहुत ज़्यादा हिकमत अमली के साथ चलते थे। और उनकी हिकमत अमली आप देखें कि इस वक्त तक अभी तक वो ईरान को लेके चल रही है। ठीक है ना। तो यही मसला है कि जो उनकी क़यादत प्रेशर डाल रही है और इनमें जो आपस में इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से मुज़ाकरात के टेबल पे आने पे मजबूर, यानी कि नहीं आ सकते, मजबूर हो रही हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि उनका कहना है कि हमने 10 निकाती जो हमारा एजेंडा था वो हमने पेश कर दिया था, जिसमें तमाम मुआशी पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा था, जंग से होने वाले नुकसानात का अजाला था, अपना हुर्मुज़ को खोलने के लिए एक नया प्रोटोकॉल, इलाकाई तनाज़ात का जामिया हल, अंदरूनी तकसीम और मुज़ाहमत का बयानिया। ईरानी मीडिया खुसूसन सिपाही पासदारान से वाबस्ता तस्नीम न्यूज़ इनकी है, वो ये तासुर दे रही है कि ईरानी फ़ौज किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि ईरान ने जंग के लिए नए मरहले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है और नए अहदाफ की फहरिस्त तैयार है। मीडिया में बहस भी मौजूद है कि मुज़ाकराती टीम में सख्त गिर और अमलीयत पसंद के दरमियान कशमकश है। ऐसा मैंने कल भी ये कहा था, जिसकी वजह से ईरान अभी तक कोई मुतहदा तजवीज़ पेश नहीं कर सकता। मैं समझा, कंप्लीट कर लिया आपने। मैंने कल भी ये कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान तैयार होगा लड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा कि उसने नए अहदाफ की लिस्ट भी तैयार कर ली।
उस जंग की सूरत में नुकसान अमेरिका का नहीं होगा, इसी खित्ते का होगा, चाहे वो बिल्कुल ऐसे। अमेरिका का हो या उसके पड़ोसी ममालिक का हो, वो भी सारे मुस्लिम हैं और वो नहीं चाहेंगे कि अब ईरान को, वो पहले तो उसमें खामोश रहे ना कि ये जंग ना फैले, आलमी जंग ना बने, एटमी जंग ना बने, खामोश कब तक बैठे रह सकते हैं वो। अब वो ईरान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो उनको हदफ बनाए जी। और वो उसको इंटरसेप्ट करेंगे, अमेरिका के साथ मिलकर मारेंगे। अच्छा सर, इसका मैं खुलासा पता नहीं, हो सकता है मैं बहुत गलत कह रहा हूँ और डिप्रेसिव बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फीलिंग है कि ये अब ऐसा होगा अगर जंग हुई तो। मतलब आप ये देख रहे हैं, आपके तज्जिया कहता है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ईरानी मीडिया के जो तासुरात पेश कर रहा है इस वक्त, वो ये कह रहा है, इसका मजमूई तासुर ये है कि हम मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दबाव और धमकियों के साए में कोई समझौता नहीं करेंगे। वो आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि माशी मुश्किलात के बावजूद ईरान अपनी दिफाई सलाहियत, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी सौदेबाजी नहीं करेगा। तो सर ये जो है, ये दोनों मीडिया, यानी अमेरिका का मीडिया अपने तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है, ईरान का मीडिया अपने तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। जो ये खिंचातानी इन दोनों के दरमियान है, उसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन अभी ये अच्छी बात है कि खामोशी से इन्होंने, जैसे आपने कहा, कि जंग बंदी कर दी है और गैर मुइना मुद्दत तक के लिए की गई है। लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर ईरान नहीं आता टेबल पे मुज़ाकरात की, तो हो सकता है कि सीज़फायर को ख़त्म करके दोबारा से, क्योंकि डेट कोई उसकी फिक्स नहीं है, वो रात को ही कर सकता है। और लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि शायद कल या परसों कोई ब्रेक थ्रू और मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान आ सके, और मेरी दुआ है कि आ जाए। तो देखते हैं क्या सूरत हाल होगी नाज़रीन। आगे निकलते हैं इससे। और क्या आपके पास आज कोई टॉपिक में? यस सर, आज मैं देख रही थी कि कल एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है और वहाँ पे बाकायदा असम्बली सजाई गई है। तो इस हवाले से कुछ लोग तो तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अच्छा, मैं किस नज़र से देख रहा हूँ ये मैं आखिर में बताऊँगा, लेकिन पहले हुआ क्या है ये मैं बताऊँ। देखिए जी, KPK PTI का सूबा है पिछले 13 साल से, उन्हीं की हुकूमत है, कोई और इंटरफेरेंस नहीं है, अपोजिशन वीक है, और वो जो असम्बली है वो उन्हीं की असम्बली है। तो जैसे अगर वफाक में वो ये बात करेंगे कि असम्बली में हमें बात नहीं करनी दी जाती, हमारी बात सुन नहीं रहे, और वो हमारी कहने के मुताबिक लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, या लेजिस्लेशन ऐसी कर रहे हैं जैसे PTI या खान साहब को नुकसान हो रहा हो, हम नहीं बैठते असम्बली में, हम अपना इजलास लियाकत बाग में करेंगे। तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन KPK असम्बली के होते हुए उसी की हुकूमत अपना इजलास एक स्टेडियम में करे, ये बात अजीब लगती है। इसको कोई भी माकूल मूव तो नहीं कहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जंगी हालात में PTI खबरों से बिल्कुल आउट हो गई थी, तो अपने आप को खबरों में PTI को, हाँ, और खान साहब को खबरों में इन रखने का उन्होंने ये एक तरीका निकाला कि उसका इजलास अरबाब न्याज़ स्टेडियम किया। लेकिन उनका ये हक है कि वो अपनी पार्टी को इन रखें पॉलिटिक्स में, खबरों में। उन्होंने किया, ठीक है, उसमें वो समझते होंगे कि बेहतर है तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल इसको एजेंडा तो ये हो सकता है कि एक दफा फिर हम खबरों की जीनत बने, खान साहब का जो पॉइंट दब चुका था उसको हाईलाइट किया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की गवर्नमेंट है उसका भी बताया जाए कि पाकिस्तान में PTI भी एग्जिस्ट करती है। तो सर बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हर एक अपना पॉइंट है। जो उनके चाहने वाले हैं वो तो इसको ज़बरदस्त एक्शन करार दे रहे हैं, जो उनके नाकदीन हैं वो इस पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो चीज़ें ओवरऑल चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो व्लॉग लंबा हो रहा है आयशा, यहाँ पे एंड करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जो भी कल सूरत हाल होगी, हो सकता है ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, तो फिर हम ब्रेकिंग प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, देखते रहिए ग्लोबल वेस्ट टेलीविजन पाकिस्तान चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।